Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز ہم ایک ایسے جلسے سے کریں گے کہ جس کے مناظر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سیاست اور حکومت کس نہج پر چل رہی ہے. پاکستانیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، بات سنو یار، بات تو سنو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، میں اس کی روشنی میں میری بات سنیں، پاکستانیوں میری بات سنو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے بہت انتظار کیا ہے. ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہم نے اپنی بات بنانے کے لیے ہر کوشش کی ہے، اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میری بات سنو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ جو بھی ہے، اب فیصلہ ہمارا ہوگا. اور دیکھیں، میری بات سنو پاکستانیوں، میری بات سنو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک بہت اہم فیصلہ میں نے کیا ہے. میں نے آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات بتانی ہے جو آج سے پہلے میں نے نہیں بتائی آپ لوگوں کو. آج میں آپ لوگوں کے سامنے پاکستانیوں ایک انکشاف کرنے لگا ہوں. میری بات کو غور سے سننا. آج میری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے. میری بات سنیں. تم جذباتی ہو جاتے ہو، مجھے قدر ہے تمہاری. تم میرے شہر ہو، ٹائگر ہو تم میرے. اور پتہ ہے وہ انکشاف کیا ہے، وہ راز کی بات کیا ہے، پتہ ہے تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستانیوں میری بات سنو. ہاں سر، جلسہ کل نہ کر لیجیے. پاکستانیوں، میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. اسی بھی کرتے ہیں، خدا دا واسطہ اسی گھر بھی جانا ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور بات سنو، تم اپنے لیڈر کی بات ہی نہیں سن رہے ہو. اسے تقریر تو کر لینے دو. خان صاحب، آپ نے کیا انکشاف کرنا ہے، ایک ہی دفعہ کر دے. میری بات غور سے سنو. تم میری بات نہیں سن رہے ہو. سن رہا ہوں، اور میں کیا کالم لکھ رہا ہوں. اچھا، آگو جھکتا نہیں کرنی ہے. جی خان صاحب، میں نے اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے. پاکستانیوں میری بات سنو. فیصلہ پاکستانیوں دی جھیڑ ہے. اچھا بات سنیں، یہ جو آپ کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھا ہوا بے وقوف، یہ کیا کیے جا رہا ہے فون پہ اس وقت؟ سر میڈیا سے بات کر رہے ہیں، میڈیا ہمارے ساتھ ہے. تمہارے قائد کو ایک بات نہیں کرنے دے رہا تمہارا کراؤڈ. سر یہ قائد اور کراؤڈ کا مسئلہ، میں میڈیا انچارج ہوں. لو میرے پاکستانیوں، میں تمہیں ایک تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں. بروٹس نے خودکشی کیوں کی تھی میں بتاتا ہوں تمہیں. اپنی عزت بچانے کے لیے اب تم لوگ تیار ہو جاؤ. وہ انکشاف ہونے والا ہے. میں نے اور میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. میرے پاکستانیوں، میرے ٹائگرز، میری بات سنیں. خان صاحب پہلے روٹی نہ کھول دیئے. بس میری گل سنو، کراؤڈ قابو نہیں آ رہا، انہوں نے ٹیڈی قابو کرتا ہے. تسی 2 منٹ ساہ لے لو. ٹیڈی سنبھال پتر انہوں ذرا. اوہ واہ، شاہ محمود قریشی دے نہیں سمجھ رہے. میرے عزیز ہم وطنوں، اس ملک چینی غربت ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اس ملک میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے. پانی نہیں آتا، بجلی نہیں آتی، رشتے بھی نہیں ہونڈے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ہر دل عزیز جناب میاں محمد عمران خان صاحب. میاں محمد عمران خان صاحب کیسے ہو گیا؟ سیاست چ جڑا آندا وہ میاں ہی ہو جاندا ہے. اچھا چلو، میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. آپ کے ہر دل عزیز شخصیت، آپ کی سوچوں کے امین، آپ کے جذبوں کے ترجمان، دیکھیں جی گلا یاد رہنے لگے. ان کے لیے ایک شعر عرض ہے: مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے،
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो तशरीफ लाते हैं आपके मेरे जनाब हनीफ टीरा साहब। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਲਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। सर जी ये पानी ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हैं डैडी ये बैठे नहीं कि चले जाने खर्च दिया खर्चा। दोस्तों अगर मेरी ड्यूटी ना होती ना तो थोड़ी हाँ जिसका इंतजार वो शाकार आ रहा है तो तशरीफ लाते हैं SHO साहब। अकेला चला था जान में मंजिल, अकेला चला था जान में मंजिल, IG बदलते रहे तबादले होते रहे। आई बीए दे नारे, बीए दे नारे, बीए दे नारे। तो हाँ मैं कह रहा था कि देखिए मसला PTI वालों का नून लीग के साथ है, नून लीग का मसला PTI वालों के साथ है। जब जलसे में झगड़ा होता है तो इट्टा रोड़े सनो पुलिस वाले नवाई दे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। क्या हो गया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आफ्ताब मेरा जलसा एक बार फिर हाईजैक हो गया। मेरा पूरा प्रोग्राम हाईजैक। हाँ तो मैं ज्यादा देर नहीं निकाल सकता। तो मैं हवाले करने लगा हूँ क्या मुसीबत में फंस गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रही। हटो यार। हमारी कांस्टेबल फरी। हाँ सब बैठो, तुझे फरी तो नहीं मैं। मैं सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहूंगी आप सबको। खुद ही को कर बुलंद इतना, वाह वाह वाह। हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरीदे नारे, फरीदे नारे, फरीदे नारे। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो मेरे जलसे के साथ? खान साहब ताड़े जलसा बना रहे हैं। अपने मसाइल बताने दे। आपको पता मैं एक सिंगर बनना चाहती थी। हाँ जी वो सिंगर बनना चाहती थी, वो तितर बन गई। लेकिन मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की आप सबकी खिदमत के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला यहाँ पे? अच्छा तो रिश्ते की गल नहीं करनी, बंदे बहुते बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के मसाइल क्या क्या है। हम जितनी सख्त दिखते हैं उतनी होती नहीं है। हमारे भी दिल होते हैं, हमारा भी दिल करता हमारे घर बसे। मुड़ तू उस पासे आ रही है। अज फ्रंट ते काले कपड़े वाला नहीं बैठा, ये एडा थुड़िया इनू ये डर तो अपना मसाइल दसना तो खान साहब ने उठ खलोना है। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम के रूए रवा कांस्टेबल मोहम्मद बूटा का। तुसी बैठो, तुसी बूटे हो। कांस्टेबल बूटा साहब मुझे एक बात कर लेने दो, फिर जो मर्जी तकरीर कर लेना तुम। अच्छा एक ही गल करना, तुसी तकरीर बहुत लंबी कर दे हो। आफ्ताब क्या बात है, मौका मेरे पास आते आते कहीं और स्विंग होकर निकल जाता है। मेरा भी यही हाल है, मेरे पास भी आते आते निकल जाता है। इन्हें मना किया जलसे से गल नहीं करनी। देखिए पुलिस वाला आपकी हिफाजत के लिए क्या क्या जतन करता है। देखिए आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा। देखिए बात सुनिए, देखिए उसी की सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ SHO ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਟੀਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। तमीज कर, मतलब सर तमीज कर। Huzrat, we'll take a break. Stay with us. अवाम का ठाठे मारता समंदर। ओए अरोड़ा किने मारे? हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से। लोगों सुन लो, हमने तो प्यार किया है। वेलकम बैक।
خواتین حضرات، آج کا گانا ہم نے فلم گناہگار سے لیا ہے. نہایت لازوال کمپوزیشن رشید اترے کی، بہت خوبصورت لیرکس ریاض شاہد کی، گایا منیر حسین نے. پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से. लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से. लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है. उनको देखा जो हंसी, रुक गई सांस वहीं. उनको देखा जो हंसी, रुक गई सांस वहीं. भूल आंखों की नहीं, हमको इतना है यकीन. दिल ने इकरार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से. लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है. से डर, खौफ देता था खबर अपने अंजाम से डर. दम मोहब्बत का न भर, कौल उल्फत का मगर. हमने हर बार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से. लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है. हमने जाना था जहां, आस निकली है यहाँ. हमने जाना था जहां, आस निकली है यहाँ. अब तलक चुप थी जुबान, बात छुपती है कहाँ. आज इजहार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से. लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है. ब्रावो. अच्छा, हिंदी में इसको दब्बू कहते हैं. दब्बू यानी जो दबाव में आ गया, बीवी के दबाव में रहता हो, वो बेचारा दब्बू है. सर हमने तो दाबू सुना हुआ है. दाबू टांगा होता है जब घोड़े का बस इम्बैलेंस हो जाए आगे और पीछे. एक दाबू, एक उलार. कोचवान कहना जरा पीछे हो जाओ, टांगा उलार हो रहे हैं. हाँ जी. और अगर वो आगे हो जाए कहे तो वो दाबू हो रहा होता. कोई चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ तो इसमें बची की क्या बात है? ਟਾਂਗਾ ਖੋਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ. वेलकम बैक. खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया. सुभान अल्लाह. और आज एक मुहावरा, उससे आगाज करेंगे. चोरों को पड़ गए मोर. इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ऑडियंस में से कोई? अच्छा, जब पता नहीं होता ना किसी चीज का, फिर नजरें ही नहीं मिलाते. जाहिर है इसका मतलब तो ये है ना कि रॉबर को रॉब कर लेना. लेकिन इसकी जो एटिमोलॉजी बताई गई है डिक्शनरीज में, वो बड़ी दिलचस्प है. अगेन मैं ये कहूंगा कि ये होता हाइपोथेटिकल है. ये किसी ने आंखों देखा हाल बयान नहीं किया.
یہ صرف مؤلف کی چشم تصور ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہوا ہوگا, یقیناً یہ ہوا ہوگا. مولف دے سر چ سٹ لگی ہے, کیوں انہاں سوچدے؟ وہ بادشاہ ہے بھائی, اس نے آپ کے لیے ڈکشنری ترتیب دی ہے, اس لیے مؤلف کو, مرتب کو یہ الاؤنس دینا پڑے گا آپ کو. وہ جو کہتا ہے ماننا پڑے گا. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے, جی علماء ہوتے ہیں, لنگوسٹکس کے بڑے ماہرین ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہوا یہ ہوگا کہ چوروں نے کسی جگہ سے کوئی قیمتی ہار چرا لیا ہوگا, ہیرے کا ہار, اور بہت بڑا. بہت بڑا کی مجھ دے گل چ پاؤنا. تم نے کبھی جیولری دیکھی نہیں نا, ست لڑیا ہار ہوتا ہے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ایک مالا ہوتی ہے, ایک کٹ مالا ہوتی ہے. نہ فوری سنیارے کی دکان کھول لی تھی. اس کے لیے سنیارا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کیا چور ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے مور ہونا ضروری ہے. اچھا, ہوا یہ ہوگا کہ وہ ہار چرا کے وہ کسی ایسے مقام پہ, ایسی غار میں یا ایسے گھر میں چھپ گئے جہاں پہ مور تھا آلریڈی, کوئی بڑا تگڑا مور تھا. اب ہار انہوں نے رکھا اور یہ کوئی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہوں گے. تو مور کی نظر ہار پہ پڑی. ہار لمبا ہوتا ہے, اس میں کوئی تھوڑی بہت چمک بھی آئی ہوگی, تو مور نے سمجھا کہ سانپ ہے. اب مور اکیلا نہیں ہوگا, مور 2-3 ہوں گے. انہوں نے حملہ کر دیا, ہار پہ حملہ کر دیا اور چھوٹا چھوٹا پیس اس کا کھا گئے. کیونکہ مور بڑے شوق سے, بڑی رغبت سے سانپ کھاتا ہے. پہلے اس کو مارتا ہے. پر وہ ماردا کیویں, اودے ہاتھ وچ سوٹا ہوندا ہے. آپ نے مور کا پیر دیکھا ہے, بڑا سخت, بہت تگڑا, جیسے لکڑی کا ہتھوڑا ہوتا ہے نا, کوئی گیول ہوتا ہے جیسے, اس طرح کے اس کے پنجے. اور وہ ایک بھی مار دے نا سانپ کو. میرے تو سامنے چند دن پہلے 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں مور کے ہاتھوں, تو دوسرا سانس نہیں لینے دیتا. بظاہر بڑا نفیس, خوش نما, خوش شکل اور خوش رنگ لگتا ہے. کچھ کو سن بھی بہت ہے. سر سنے ہیں مور تے خسرا اپنے پیر ویک کر ہون لگ پے. چنانچہ جب چوروں کی نظر پڑی کہ بھئی ہار تو غائب ہے, انہوں نے کہا یقیناً مور کھا گئے ہوں گے. اس دن سے یہ محاورہ وجود میں آیا کہ چوروں کو پڑ گئے مور. اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر کچھ غلط ذریعے سے کمائی دولت آپ کے ہاتھ سے چھن جائے تو آپ اس کا ڈنڈورا بھی نہیں پیٹ سکتے. بالکل. میں نے اکثر سنا ہے کہ کرپٹ سرکاری افسر اپنی جائیدادیں غریب رشتہ داروں کے نام کروا دیتے ہیں یا ملازمین کے نام کروا دیتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں, اور ان میں سے اکثر حسب توفیق کھا پی جاتے ہیں نام کروائی ہوندی, جس کے نام کروائی ہوتی ہے. اب یہ ہے چور, اس کو پڑ گیا مور, اور اس کا وہ ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتا. مطلب کیا FIR کیا کروائے گا کہ جی میں نے رشوت میں 50 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے تو یہ کھا گیا. اس کو یہ بھی کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو. سر ڈاکٹر آسم بچار نال ہی جائے تو آیا ہے. دور ناگی. یہ ٹھیک ہے, واقعی ایسا ہوا ہے. یہ دروغ بر گردن راوی. ڈاکٹر عاصم نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ اپنے ایک دوست کے نام کینیڈا منگوائی تھی. وہ بیچارہ فوت ہو گیا, اور اس کے فوت ہوتے ہی اس کے بچوں نے کہا جی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے, یہ تو اس نے آپ سے بزنس کیا تھا, اور اگر آپ نے کوئی چونچرا کی تو ہم اس کا اعلان کر دیں گے کینیڈا میں بھی اور پاکستان میں بھی. ڈاکٹر صاحب بیچارے چپ. وہ کیا کرتے؟ سر ایک کالا چور بھی تو ہوتا ہے. ہاں جی, کالا چور. کالا چور کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا جی, کالا چور. ہاں جی کالا چور. سر کس سے کاڑے رہتے تو ہر رنگ دا چور ویکھیا ہونا. کسی کو نہیں پتا. کالا چور ایک محاورہ ہوا کرتا تھا, بڑا خوفناک چور ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, اور یہ راہزنی کیا کرتے تھے, یہ گھروں کے اندر ڈکیتیاں کرتے تھے. ان کا انداز اس قدر صفاق اور ظالمانہ تھا کہ لوگ باقاعدہ ان کے تصور سے تھر تھر کانپنے لگتے تھے. یہ انتہائی پراسرار طریقے سے گھر کی دیوار پھاندتے, اور آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے. اس قدر چالاک, مکار اور ظالم ہوتے تھے کہ ہاتھ میں عام طور پہ ان کے جو اسلحہ ہوتا تھا جس سے یہ مارتے تھے, وہ پایا, چارپائی کا پایا ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ میں ہوتا تھا. اور حالت یہ ہوتی تھی ایک چھوٹا سا لنگوٹ پہنا ہوتا اور ایک کالا محلول جسم پہ لگا رکھا ہوتا تھا. اس کالے محلول سے ایک تو یہ نظر نہیں آتے اندھیرے میں, اور وہ اس قدر سلپری ہوتی, وہ آئل ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ڈالتے تو وہ کھینچ کے چھڑوا لیتے, تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے کالا چور. کالے چور کو
पकड़ने का इनाम आम चोर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होता था। काले चोर को मारना ऐन कार सवाब समझा जाता था। अगर आपने ठगों के बारे में कुछ पढ़ना हो तो मैं बेस्ट सोर्स, एक दो तो किताबें हैं ठगी से मुतालिक, वो शायद आपके काम की नहीं है। नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੁੜੇ नहीं यार, सीरियसली एक नॉवल है शम्सुर रहमान फारूकी का, कई चांद थे सरे आसमां। बहुत शानदार नॉवल। उसके अंदर चैप्टर है एक पूरा ठगों के बारे में। जी, यानी आप समझें कि उस नॉवल के अंदर आपने ठगों के बारे में एक किताब पढ़ ली। इतना शानदार नैरेटिव है उस बंदे का। मेरे लिए 2-4 चीजें बिल्कुल नई थी। की होल इफेक्ट मैंने पहली दफा इस किताब में पढ़ा कि की होल इफेक्ट, आपकी नजर कमजोर हो जाए ना तो आप आंख को यूं करके देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आने लगता है। जी सर। जैसे आप की होल के ऊपर आंख रख के देखें तो पूरा मंजर आपको हर एक कमरे का नजर आ रहा होता है। इस तरह की लातादाद चीजें हर सफे पे मौजूद। लेकिन अफसोस कि जो असल मकसद है नॉवल का वो है कहानी, वो थोड़ी सी इंजर होती है ऐसे लोगों का। और इसका शिकार कुर्रतुल ऐन हैदर भी हुई है, इसका शिकार बानो कुदसिया भी हुई है। कहानी में उलझाव की वजह। हाँ जी, उलझ जाती है ना। जैसे हम चोरों को मोर डिस्कस कर रहे थे, फिर काला चोर आ गया, फिर ठग आ गए, कई चांद थे सरे आसमां वो आ गया। अब जो चीज बिल्कुल फरामोश होगी वो मोर थे, वो हार था और वो चोर था। सर एक उल्टा चोर भी तो होता है। उल्टा चोर नहीं होता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब ये नहीं होता कि चोर उल्टा लटक के कोतवाल को डांट रहा है। इसका मतलब ये होता है बजाय खुद डांट बर्दाश्त करने के वो उल्टा जी सर उसको डांट रहा है। उल्टा कहने उत्तों नहीं पे आ गया जी। हाँ जी सर मैं एक सवाल करना चाहना। जी जनाब जरूर। जहे नसीब रन मरीद की होता है। रणमरीद, आपको बात है भला इसकी शान नजूल क्या है? सर एक मेरे दोस्त ने प्रोफेसर साहब, अच्छा जी। तो बंदा उस प्रोफेसर ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੀ उन्होंने कहा जी पिछले दिन ही तुसी रन मरीद का कोई गाना चलाया है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी मशहूर फिल्म है रन मुरीद। हाँ जी वो कहते जी वो गलत है, गाना गलत है। सर लफ्ज गलत है। क्या कहते क्या है? कहते ने जी कि रन मरीद नहीं है। ओहो, ये बेसिकली पंजाबी में रन मुरीद कहते हैं, असल लफ्ज है फारसी जन मुरीद। तो ये गलत नहीं है, पंजाबीआइज्ड है, बल्कि असल जो फ्रेज है फारसी में वो है मुरीद जन। मुरीद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ओ वजूद जन। तब तो फिर इसका मतलब है रन मरीद ठीक है। जी आप अपने प्रोफेसर दोस्त से कहिए कि रन मुरीद जो है पंजाबी में यही होता है, जिसे जोरू का गुलाम कहते हैं। नौकर वोटी दा देना। हाँ जी, नौकर वोटी दा भी, जो अपना आका बना ले बीवी को। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਆ ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? अरे ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਮੁਰੀਦ। यार ये वही है जो बीवी से जरा डरता हो। ਮਾਰ ਖਾਤਾ ਹੋ। ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंडीकैप्ड हस्बैंड। हैंडीकैप नहीं, हैंड पैक्ड। अगर देखा जाए तो हस्बैंड बजाते खुद हैंडीकैप्ड है। हस्बैंड ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। ਲਓ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। हस्बैंड है हाउस बाउंड, ये जो घर में खूंटे के साथ बंधा हो। अब तुम शादीशुदा हो, अब ये इधर उधर नहीं फिर सकते, तुम्हारी मजाल नहीं है, इधर आओ और घर के साथ बंध जाओ। यानी वो अपने घर के लिए बाउंड है, जहां जाएगा वापस आएगा। हाँ, यानी वो कहीं भी गया कहीं भी लौटा तो मेरे पास आया। वाह वाह वाह। जिसे कहते हैं ना लोटा तो मेरे पास आया। अच्छा हिंदी में इसको दब्बू कहते हैं। दब्बू इसको यानी जो दबाव में आ गया, बीवी के दबाव में रहता हो वो बेचारा दब्बू है। सर हमने तो दाबू सुना हुआ है। दाबू टांगा होता है जब घोड़े का बस इम्बैलेंस हो जाए आगे और पीछे। एक दाबू एक उलार। कोचवान कहना जरा पीछे हो जाओ, टांगा उलार हो रहे हैं। हाँ जी, और अगर वो आगे हो जाए कहे तो वो दाबू हो रहा होता है। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो इसमें बची की क्या बात है? ਟਾਂਗਾ ਖੋਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ। सर आज का शेर। आज का शेर एक बार फिर अशरफ यूसुफी जी का शेर है कि ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। अरे एक वाक्य इस मैं पुलिस भर्ती हो गई सी। क्या वाक्य हुआ था? दसने वाला नहीं है जी। मैं दसा मेरा दसने वाला है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਸਨ। वो तो भाभी मेरा अपना बंदा सी।
वेलकम बैक जी। खबर है कि मेकअप के बहाने पार्लर में दाखिल होकर डकैती करने वाली 2 बहनें गिरफ्तार। ਲਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। औरतें बड़ी देर से इस काम में आई हुई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फुलन देवी नहीं याद? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲਨ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਸੀ? वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, तुम जैसे बुज़दिल और नालायक बच्चे की वालदा वो हो ही नहीं सकती। वो बाद में बहुत उम्दा खातून के तौर पे सामने आई और उसने बहुत काम किया गरीब आवाम के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहादुर खातून थी सर। बहादुर तो थी, बल्कि उसकी एक फॉलोअर भी पैदा होगी, सीमा परिहार। काम यही करती थी, डकैतियां शिकैतियां और बड़े जबरदस्त तरीके से, लेकिन साथ ही फिर अवाम की खिदमत भी तो बड़े जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी। ये सारे अपने अपने तौर पे रॉबिन हुड्स भी होते हैं, यानी एक को रॉब करते हैं और दूसरे को पे करते हैं। फिर है जी बॉनी पार्कर, ये अर्ली 30s का कैरेक्टर है। ये बहुत बड़ी डकैत थी और बैंक डकैती इसकी स्पेशलिटी थी। इसने अमेरिकी पुलिस को आगे लगाया हुआ था। लुइसियाना वो मकाम था जो इसका वाटरलू साबित हुआ, पुलिस मुकाबले में मारी गई। और सर कहा जाता है कि 100 राउंड फायर किया गया था। जी 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 पुलिस इस कदर डरी हुई थी कि 5 रियासतों की पुलिस ने ऑपरेशन किया था। जी जी। यहाँ जैसे होता नहीं है कि 8-8 जिलों की पुलिस इकट्ठी हो जाती है कि पकड़ना किसको जी, छोटू गैंग को। आखिर फौज आके पकड़ती है, पुलिस के बस का रोग नहीं। अमेरिका में भी यही हुआ था और अक्सर होता है कि जब कोई बहुत बड़ा नामी ग्रामी हाई प्रोफाइल मुजरिम हो तो उसके लिए फिर काफी रियासतों की पुलिस इकट्ठी हो जाती है। अच्छा जी, इसका बॉयफ्रेंड था क्लाइड, असल डकैत वो था। ये छोटी मोटी डकैतियां करती थी। उसने कहा तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम इस तरफ क्यों नहीं आती, लेट्स रॉब बैंक्स। तो बैंक डकैती की तरफ उसने रागिब किया। फिर ये सही मानों में फुल्लन देवी ये थी। इससे अमेरिकी पुलिस बाकायदा डरती थी और वो कहते हैं कि जब हमने गोलियों से छलनी कर दिया उसकी गाड़ी को, तब भी डरते हुए कोई करीब नहीं फटक रहा था। इस पर बड़ी मशहूर फिल्म भी बन चुकी है, बॉनी एंड क्लाइड। तो सर ये मामला क्या है? ये सीधा सीधा वाकया था। बड़ी फजूल और घटिया किस्म की डकैती करने की इन्होंने कोशिश की। ये एक तो बुर्कापोश थी, यानी नकाब इन्होंने ओढ़े हुए थे। ब्यूटी पार्लर्स में, सलून्स में, ऐसी जगहों पर जो नकाब ओढ़ के आती हैं वो थोड़ी सी मशकूक तो होती है। सर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि वहां पर होती ही खवातीन है। ये ऐसे ही है जैसे गायनी वार्ड नहीं होता, वहां पर बंदों का काम ही कोई नहीं होता। जो ब्यूटी पार्लर्स हैं ये बड़े एक्सक्लूसिव जगह होती हैं। यहाँ पर शावर्स होते हैं, यहाँ पर ब्राइडल मेकअप्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्वेलरी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेसी होती है। आदमियों का तो काम ही कोई नहीं। आप वहां भी अगर नकाब पोश हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी एंगल से मशकूक जरूर हैं उस जगह पर। तो पहली गलती इन्होंने ये की। दूसरी गलती जिसकी वजह से पकड़ी गई हैं, इनके हाथ में असला था प्लास्टिक का, नकली। तो ये अंदर गई, इन्होंने जाते ही ज्वेलरियां खींची, नोचा और कैश रजिस्टर से सारा कुछ निकाला। काउंटर से पैसे वैसे लिए जितने थे, लोगों की जेबों से निकलवाए। तो थैले की शक्ल में वो बैग भरे हुए थे। लेकिन जब निकल रही थी तो मालिकन को, जो ब्यूटी पार्लर की मालिकन थी, उसको शक गुजरा कि जो असला है ना इनके हाथ में, ये असली नहीं है, आफरीन है। मैं समझता हूँ वो बड़ी सियानी खातून थी। अरे बड़ा कोई SSG किस्म का पार्लर सी। देखो खातून होके उसे असले का इतना पता था। ਸਾਰ ਮੋੜ ਫੱਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੱਦਿਆ ਕਿਵੇਂ यार आप उर्दू में क्यों बात नहीं करते? ਸਾਰ ਮੋੜ ਪਕੜਾ कैसे मोड़ो पकड़ा कैसे मोड़? पकड़ा ऐसे कि जब इससे यकीन हो गया कि ये असला जाली है तो उसने बालों से दबोच लिया पीछे, खींचा उसे, तो उसकी चीखें निकल गई। ਤੇ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋ पांदी खप मैं लम्बिया ना पा लेंदी। ਇਹ ਮਾਲਕਣ है जी वालेकुम जी। वालेकुम, आप तो होगी ना जी मालकन। हाँ जी। और ये ए ओ चोर शक्ल से लग रही है, शक्ल से लग रही है चोर। ते ए जेड़ी भैन बनी जे, अच्छा। भैन नहीं भरा जे, बल्कि भरा भी नहीं। हुन मैं तुहानू की दसां। अच्छा, ये भी इस वक्त हिरासत में है जी। ए खुसरा जे ओदे नाल ए मर जाना। मेरे कोल नौकर सी, मुखबरी अंदरों हुई जे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी बबलू टी। क्या? बबलू टी। फिर से कहना। आप बात सुने, बोले तो नहीं? मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन तुम क्या बबलू टी क्या होता है? बबलू टिवाना। तो बबलू टिवाना क्यों नहीं कहते? देखिए टिवाना इज काइंड ऑफ आउटडेटेड नेम। आउटडेटेड कैसे हो गया? टिवाना तो इतने फन्ने खां लोग होते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर से काम करना, कोई हमामची नहीं। नहीं, टिवाने हमामों पे काम नहीं करते। माय नेम इज बबलू टी। आपने अगर मुझसे बात करनी तो आपने बबलू टी ही कहना है, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ। और इस हाथ का वो सेक होना भी गोली की चीज है।
सर मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है, मुझे तो एवं औरतें पकड़वाया हुआ है। किस औरत ने? जाहिर है इस औरत ने, जालिम औरत, ये तो मजलूम है बेचारी। डकैती कर रही थी और मजलूम है तो मासूम ही हुई ना, प्लास्टिक का पिस्तौल लेके डकैती करने आ गई थी। वैसे बाकी बात सुनो, तुम्हें ये क्या सूझी प्लास्टिक का पिस्तौल लेके आ गई? वो जी बस गलती हो गई मेरे से, मैं तो सोचा था कि मैं डरा धमका के तो चोरी चोरी कर लूंगी, लेकिन मैं पकड़ी गई। आपको शक किस तरह हुआ कि ये जाली असला है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੱਜਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੜਕ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੂੰਡਿਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਲਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਭਾਬੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾर्लर ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? आप माफी दिला दें जी, आपको तो पता है हम लोग बड़ी मजबूर होती हैं जो हम ये चोरियां चोरियां करती हैं। ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਨਵਈਆ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ। बेशर्मी की बात है कि अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए आपने चोरी को वसीला बनाया। मेहनत क्यों नहीं करती? ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। यार रख अपना ब्यूटी पार्लर अपने कोल, मेरी जमानत तो होगी, मैं अपना ब्यूटी पार्लर आप चंगा जे खोल लांगा। ਤੂੰ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। बदतमीज से तू हैगी है, छोटी जी चोरी नहीं करने देती बेचारी नू। अच्छा जी, आपने टिवाना साहब को क्यों पकड़वाया? ਇਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਜੂੰਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। और वो भी खुसरा। लेकिन मेरी बात सुने, आराम से बात करनी मेरे साथ, और ये लफ्ज जो है ना खुसरा, ये नहीं इस्तेमाल करना, वरना मैं तेरे तो वध के बदतमीज है, मैं लत्ता तोड़ देंगे फड़ के। ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੁਰਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ओए होए होए। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। नहीं शक्लों लग भी रही हैं। इसका क्या मतलब है? सर इस मुल्क च जेड़ा किसी जोगा नहीं ना होंदा वो नेक हो जाता है। अच्छा, ये देखो आज कितना बोल रहा है। और आज हनियल बेला नहीं है ना, इसलिए बढ़ बढ़ के बोल रहा है। मुझे याद आ रही है राजा गिद्ध की एक लाइन, बहुत खूबसूरत, बानो कुदसिया की। गवर्नमेंट कॉलेज का ओवल का एक मंजर है, मैच हो रहा है और कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, तो कहती हैं कि सीमी चूंकि आज गैर हाजिर थी, उसकी गैर मौजूदगी में कौसर कदरे खूबसूरत लग रही थी। तो आज हनी की गैर मौजूदगी में ये बढ़ बढ़ के बोल रहा है। मैं हुण सीमी है या कौसर दोवां? सीमी वो है, तुम कौसर हो। इधर साडा स्यापा पे अपना लुचबा चुतली में तन दसिया और तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है उसका? पता नहीं केड़ा कौसर ते केड़ी सीमी। दोवें ही औरतां सन साधक। भाभी अब तो आपको सारा सामान मिल गया, अब तो मुझे माफी दे दें। तेने पुत्र सबक सिखाना पैना है। सबक मिल गया कि बस प्लास्टिक का सामान घर नहीं आन देना, बस ठीक है। ए वेख मेहनती औरतां, तू भी मेहनत कर दी, तेन की लोड़ पई सी डकैतियां मारन दी। इन्हां दे वाकई तो सुनो सर जी, इन्होंने अपनी जान ते खेड खेड के किड्डे किड्डे कारनामे अंजाम दिते ने। क्यों जी, आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? एक वाक्य इस मैं पुलिस भर्ती होगी। क्या वाक्य हुआ था? दसने वाला नहीं है जी। मैं दसा, मेरा दसना है। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਤੇ ਸਹੀ, ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ। मुझे जरूरत नहीं है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हम उसके बगैर ही हंस के दूरे हो रहे हैं। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। मैंने कहा ना नहीं सुनना। सुन ले, आप बेचारे का दिल रख ले, आप क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा, तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है उससे? मुझे हमदर्दी नहीं हो रही, मुझे सस्पेंस हो गया, पता नहीं क्या हुआ बेचारी के साथ। सुनाओ, कुछ नहीं कहते। हाँ, तेरे अब्बे दा राज ने कुछ नहीं कहते, सुनाओ। बड़ी बदतमीज औरतें देखी मैंने आज तक, लेकिन इस जैसी नहीं देखी। मन मारी ना ये रजिया जैम पर दस ना, जेड़ा तू डाकू फड़े सन भज के। यही तेरी दसने वाला। और मेरा वाक्य बड़ा दिलचस्प है, मैं तो वजीर आला ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। तो फिर क्यों नहीं सुनाया? ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। बस एक बारी ना मैं डकैतां दे पीछे नसी ते फिर वो मेरे पीछे नसे। बस फिर ऐसे नस भच मेरा तबादला हो गया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਸਨ। वो तो भाभी मेरा अपना बंदा सी। ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨੂਰ ਨੇ। बात सुनो बदतमीज औरत, अगर ये नूर है ना तो फिर ये डकैत ही ठीक है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਸਾ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਦਲੇਰ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
खतीनो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।